Okay guys, so let's start. We are starting with our chapter 5, that is level annuities, and chapter 6 basically, okay. So chapter 5 and chapter 6 we will be doing a combined question, but before that I am thinking of teaching you guys how to do the notations first. Is that clear? We have so many notations, like we have AN, ADUN, IAN, IADUN, similarly for SN, SDUN, SBARN, annuities which are paid monthly, annuities in perpetuity, right? These are so easy to write in your notebooks, but equally difficult to write in your MS Word. Okay students, so open up your laptops please. Giving you 30 seconds to open up your laptops. Come on. Everyone give me a yes in the chat room once your laptop is opened, okay? Then only we can start the class. I want yes from everyone. Okay, Priyanshi yes, Rashika yes, Mithun yes, Shaurya yes. Okay, cool. So let us start with the notations. We will do a question once we are comfortable with all the notations that we have in our 5 chapter, 6 chapter and furthermore chapters. Is that okay? Okay, I can see a lot of students open their laptop. So let's start with the notations. Firstly, we have this sign, right? Let me first write. We have this notation, right? So this is annuity payable continuously, and we are talking about what we are talking about. This is present value, right? So let's start typing this. First go to equation editor. Alt equal to we use for equation editor, right? Then we have A. Now for this bar sign, what I write is backslash bar. What I say? Backslash bar. So backslash BAR bar. A single space bar will make a difference. दिख रहा है ये गैप दिख रहा है, ए के ऊपर पूरा नहीं आया, राइट? ए के थोड़ा सा साइड में आया है. Pressing once again a space bar will give me the dash over the letter. Clear हुआ? Give me a yes if everyone is getting this A bar in their equation editors. Come on. Okay, Bhavya is getting this A bar. Okay, Shaurya is getting. Okay, I can see many more students getting this A bar. Now we have this denominator. So denominator, we have this in subscript, right? So for subscript, which sign did I prescribe you guys? मैंने कौन सा साइन बताया था डिनोमिनेटर सबस्क्रिप्ट के लिए? दिस वाज द शिफ्ट माइनस साइन. शिफ्ट माइनस से अंडरस्कोर वाला साइन आता है. दिस इज फॉर माय सबस्क्रिप्ट, राइट? सो मैंने सबस्क्रिप्ट के लिए लिखा. नाउ सबस्क्रिप्ट में क्या है? एन के ऊपर बार है एंड देन दिस स्लैश वाली थिंग है. सबसे पहले एन बैकस्लैश BAR बार. एक बार करा तो साइड में आया,
अगेन प्रेस किया तो एन के ऊपर आया, राइट, और इस बार प्रेस किया तो वो नीचे चला गया। इज दैट क्लियर? ये एन के ऊपर बाहर आया सबका। कम ऑन, गिव मी यस जब एन के ऊपर बाहर आ जाए, एंड यू आर गेटिंग दिस टर्म ए बार एन बार। Quickly everyone give me a yes. ठीक है, no worries Kshitij, I'll explain, just a minute. Let's do again. First we write alt equal to for getting our equation bar, then we have this a bar thing. सबसे पहले a bar है ना, so a backslash b a r bar, सिंगल स्पेस बार दिया। whenever I give one space तो वो साइड में आएगा, so I have to give an another space as well, उससे वो a के जस्ट ऊपर आएगा। Is it clear क्षितिज? a बार हुआ तो इसको यस बोलो जल्दी से। Okay, then we have n bar and this bracket sign in the subscript. तो subscript में जाने के लिए what I have prescribed is, देखो स्टैंडर्ड ही रखेंगे हर चीज को, बस थोड़ी थोड़ी एडवांस होती जाएंगी। तो सबस्क्रिप्ट में हर बार इक्वेशनेटर में जाने के लिए व्हाट साइन आई यूज दिस अंडरस्कोर साइन। सो मैंने अंडरस्कोर साइन किया, फिर एन के ऊपर बार दिख रहा है तो बार लगाने के लिए एन बार, डबल स्पेस दूंगी फिर से, और एक और स्पेस दिया तो सबस्क्रिप्ट में आ गया। और टू गेट दिस इक्वेशन एडिटर ऑल्ट इक्वल टू, ठीक है। नाउ एवरीवन विद मी ऑन द सेम पेज टिल नाउ। अब मेरे को नीचे सबस्क्रिप्ट में आना है, सो आइदर यू कैन यूज योर माउस और यू कैन यूज योर एरो कीज। सो आई वुड प्रिस्क्राइब कि आप माउस यूज मत करो, कीबोर्ड यूज करो, बिकॉज इट्स अ फास्टर वे। ओके, सो यू हैव 4 एरो कीज, राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट। सो यूज योर लेफ्ट एरो की। फिर आपको दिख रहा है मेरा कर्सर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। यू कैन सी दिस ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स का मतलब है वट एवर आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग दिस इन ब्लू बॉक्स, ठीक है, सबका ये ब्लू बॉक्स आया। फिर यू कैन सी दिस साइन, दिस स्लैश साइन, स्ट्रेट स्लैश, दैट इज वर्टिकल स्लैश साइन आपको दिख रहा होगा आपकी एंटर की के ऊपर। यू कैन चेक दिस साइन अबव योर एंटर की। ओके, प्रेस दिस स्लैश साइन ऑन योर एंटर की। अब अगर मैं एंटर मारूंगी तो फिर क्या होगा कि मैं ब्लू बॉक्स के अंदर डील कर रही हूँ। सो आई हैव टू एस्केप दिस ब्लू बॉक्स। और इस ब्लू बॉक्स को एस्केप करने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको इंटीग्रेशन में? यूज द फॉरवर्ड एरो की, दैट इज राइट साइड वाली एरो की। सबका आया? गिव मी यस इफ इट्स डन। जहां पर भी स्टक हो गिव मी द सिनेरियो, मैं बताती हूँ कहां पर स्टक हो आप। कम ऑन गाइज। ओके, प्रियांशी का हो गया, राशिका का हो गया, वेरी गुड। एवरीवन एल्स इन द क्लास आई एम वेटिंग फॉर यू। आई नो दीज आर लिटिल डिफिकल्ट, सो नो वरीज, विल गो वेरी स्लो, बट आई वांट यू गाइज टू at least learn these notations, because अब CT1 में सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की नोटेशंस में ही आती है। एवरीवन फेस डिफिकल्टी इन दीज नोटेशंस ओनली, CT1's नोटेशन एंड CT5's नोटेशन। मिथुन का भी हो गया, भव्य का भी हो गया, क्षितिज का भी हो गया है। नचिकेत, व्हाट अबाउट यू? एंड वी हैड शौर्य, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, यन, Shri Krishna. Everyone guys, waiting for 30 more seconds. ठीक है. Now those who are done with typing A bar and try typing S bar N. Okay, bar part once again.
Okay, so let's type S bar N, and Nachiket, you can consider the bar part from the same thing, because I'm just changing the letter. Okay, S backslash bar bar स्पेस मारा तो we will get back this bar sign आगे. ठीक है, so अगर मैं एक और बार स्पेस मारूंगी then only it comes exactly over my letter. so मेरे को 2 बार स्पेस हिट करना है. ओके, then we have everything in subscript. so subscript में जाने के लिए I use this underscore sign. then we have n, so n backslash, n के ऊपर भी बार दिख रहा है आप लोगों को, so bar डबल स्पेस. ओके, then I hit a space bar. स्पेस बार से वो नीचे चला गया सबस्क्रिप्ट में, बट मेरे को दिख रहा है मेरा सिर्फ n के ऊपर बार नहीं है, I have this sign as well, वर्टिकल बार भी है मेरे पास, राइट. सो मैं अपनी जो एरो कीज है, मेरे पास कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती हैं इन दिस साइन. सो मैं ये लेफ्ट वाली जो एरो की है, आई यूज दिस लेफ्ट एरो की, मतलब मेरे को इस साइड आना है ना. सो मैंने वो एरो की यूज किया, और उसके बाद एंटर के ऊपर जो मेरा वर्टिकल एरो है, वर्टिकल बार साइन है, मैं उसको यूज कर रही हूं. इज इट क्लियर? एंड फिर मेरे को ब्लू बॉक्स दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर एंटर हिट करती हूँ तो यू नो इंटीग्रेशन वाली इश्यू आ जाती है. दैट्स वाई मुझे ब्लू बॉक्स को एस्केप करना है, मतलब मुझे आगे की साइड जाना है. एंड ब्लू बॉक्स को एस्केप करने के लिए व्हाट आई यूज इज माय फॉरवर्ड एरो की, एंड देन आई कैन हिट अ स्पेस बार. इज दैट क्लियर? नचिकेत, इज इट क्लियर नाउ? Come on guys, if you are done with your SN as well, give me a yes quickly. Okay, your SN is done. Okay, everyone is done. Now अगर मैं अपनी नॉर्मल एन्युटी की बात करूँ, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई एन्युटी पेबल इन अरियर्स, सो उसमें मेरा बार टर्म नहीं होता है. सो व्हाट आई यूज इट ए, एंड फिर मेरे एन वाली जो सेम कंडीशन है मैं उसको कर लूंगी, बार यूज नहीं करूंगी. सिंपल थिंग. सो इफ आई डू इज ए, मेरा बार कुछ नहीं है, आई डायरेक्टली हैव माई एन वाली चीज इन माई सबस्क्रिप्ट. सो मैं डायरेक्टली सबस्क्रिप्ट वाला कंडीशन यूज करूंगी. सबस्क्रिप्ट के लिए व्हाट आई यूज इज अंडरस्कोर एन बैकस्लैश बार. बार को चेंज करने के लिए आई यूज डबल स्पेस, अगेन अ स्पेस, ताकि वो सबस्क्रिप्ट में चला जाए. देन आई यूज माय बैकवर्ड एरो की, फिर उसके बाद मैं वर्टिकल बार लगाऊंगी. एंड टू एस्केप दिस ब्लू बॉक्स आई अगेन कम यूज द फॉरवर्ड एरो की. इज इट क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर हो चुका है. अब आते हैं हम हमारे एन्युटीज पेबल इन एडवांस. सो एडवांस के लिए क्या करेंगे? ए ड्यू एन एस ड्यू एन. वो ड्यू वाला साइन कैसे लेके आए? वी हैव 2 डॉट्स, राइट. सो डॉट्स के लिए कैसे साइन लेके आए? ऑल्ट इक्वल टू ए. सिंस वी हैव 2 डॉट्स, दैट्स व्हाई आई विल यूज द टर्म DDOT. Okay, DOT for dot, or since I have 2 dots, that's why I will use DDOT. So backslash DDOT space. Whenever I give space, अभी as बार वाली कंडीशन वो बिल्कुल डायरेक्टली अबव नहीं आया है, इसलिए मेरे को 2 स्पेस देने की नीड है. क्लियर हुआ? देन ये n बार वाली भी चीज कॉपी पेस्ट कर ले हम. सो अंडरस्कोर n बैकस्लैश बार स्पेस, अगेन अ स्पेस, बैकवर्ड एरो की, ताकि मैं ब्लू बॉक्स को खोल सकूं. देन दिस माय वर्टिकल एरो, वर्टिकल बार, देन टू एस्केप दिस. ADUN is clear guys? Giving you 30 seconds, try writing SDUN as well, and when you are done with ADUN and SDUN, give me a yes. Waiting for responses from all of you. ठीक है.
ओके, प्रियांशी का हो गया है, श्री कृष्ण का हो गया है, यन का हो गया है, मिथुन, शौर्य, भव्या, क्षितिज का हो गया है. ओके, come on guys. Okay, so these are clear. Then I have something called perpetuity as well. So perpetuity में क्या difference होता है? A ड्यू लूँ, A बार तो नहीं होता उसमें, A ड्यू लूँ, S ड्यू लूँ, ये सिंपल A लूँ, उसमें बस N की जगह मेरा इन्फिनिटी का साइन होता है. So what I can do is मैं इसी में ही चेंज करती हूँ, okay? क्योंकि आप लोगों को इसमें चेंज करना आना चाहिए. आप इन योर क्वेश्चन जब आप अपना बड़ा लंबा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप बार बार ये वाली टर्म थोड़ी लिखोगे, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स राइटिंग सो मेनी चीज, राइट. सो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू चेंज द नोटेशंस. मतलब जैसे कि अगर आप लिख रहे हो एक पे लिख रहे हो ए ड्यू 8, एक बार लिख रहे हो ए ड्यू 7, सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज यू हैव टू कॉपी पेस्ट योर ए ड्यू 8 थिंग एंड चेंज 8 to 7, राइट. यू वोंट बी राइटिंग अगेन एंड अगेन 8 ड्यू 8, 8 ड्यू 7. It will take a lot of time. That's why you need to be comfortable with your copy pasting functionality and changing your n to different values. Clear हो गया? So how do we change it? For changing anything, I am changing n. So that's why I need to go to n. So देखो मेरा n वाला जो cursor है, that's coming exactly next to n. Then I hit a backspace. बैकस्पेस दिख के हो गया, मेरा n रिमूव हो गया, बाकी मेरे बार सेम जगह पर है, राइट. उसकी जगह आई कैन राइट इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी के लिए \infinity आई यूज एंड देन अगेन माय फॉरवर्ड एरो की. लुक, समझो कि इक्वेशन एडिटर में हर एक एरो, हर एक कर्सर जहां मूव कर रहा है उसका मतलब क्या है. अगर मैं यहां पर कुछ बैकस्लैश दबाऊंगी तो मेरा कौन सी चीज रिमूव होगी, I'll get this vertical bar removed, right? हमने नोटेशन क्या यूज की थी, चेक आउट द नोटेशन. A D dot, then I use this under, मैं नॉर्मल में लिख के दिखाती हूँ आप लोगों को. What notation did we use actually? हमने यूज करा क्या, A बैकस्लैश D dot, देन हमने यूज करा n, उसके ऊपर बार यूज करा, देन उसके बाद हमने ये वाली की यूज करी, राइट. और उसके बाद हमने वी यूज दिस की, राइट. तो अब अगर मैं इसकी नोटेशंस को ध्यान से समझना चाहूँ, जब मैं एक बार अपना बार को इस साइड लेके जाऊंगी, सो व्हाट एम आई रिमूविंग इज, मेरा ये वर्टिकल बार हटा रही हूँ, ठीक है. उसके बाद जब मैं एक बार शिफ्ट करूंगी तो मेरे n बार है, मतलब मेरे n के ऊपर का बार मैं रिमूव कर दूंगी. फिर अगेन जब मैं इसके पास आऊंगी तो ये जो मैंने n चीज लिखी है या इन्फिनिटी लिखा है, मैं उसको रिमूव कर रही हूंगी. फिर नेक्स्ट बार जब मैंने कर्सर हटाया, सो इसका मतलब है मैंने जो स्पेस दिया होगा नीचे लाने के लिए अंडरस्कोर विच इज, तो मैं वो अंडरस्कोर रिमूव करूंगी. फिर उसके बाद व्हेन आई कम टू दिस, तो मेरा ए डी डी डॉट मैं वो रिमूव करूंगी. क्लियर हो गया एवरीवन? सो अंडरस्टैंड दीज बार्स. आपके कर्सर कहां पर मूव कर रहे हैं, दैट शोज कि आपका कोड में आप कौन सी चीज को रिमूव करते जाओगे या फिर कौन सी कोड की चीज को आप सेलेक्ट कर रखे हो उस टाइम पे. मिथुन, इट्स \infty, अदरवाइज इट मे बी \infinity. या तो पूरी स्पेलिंग हो सकती है इन्फिनिटी की या फिर सिर्फ इन्फटी भी हो सकता है. चेक आउट व्हाट्स द शॉर्टकट फॉर योर कीबोर्ड. Everyone clear with this? Were you able to change your n into infinity? If you are done with a due infinity, try changing a due infinity to s due infinity. आपको नया कोड नहीं लिखना है, you just have to change a due infinity to s due infinity. आपको a को लेटर को चेंज करना है s में. Okay? Just copy paste the same thing and then try changing A to S. अगर आपको आपके कीबोर्ड से एरो की यूज करने में दिक्कत आ रही है, so you can simply use your mouse as well. Come on guys, give me a yes अगर आप अपने A due infinity को S due infinity में चेंज कर पा रहे हो तो. Once again I am repeating, मैं बार बार क्यों फोकस कर रही हूँ कि चेंज करना है. I am focusing it
ऑन इट, बिकॉज आप एग्जाम में हर बार ए इन्फिनिटी या ए ड्यू ए एन के लिए आप नए नए कोड नहीं लिख पाओगे. दैट्स व्हाई यू नीड टू चेंज दीज. कॉपी पेस्ट आपको आना चाहिए एंड चेंजिंग वन नोटेशन टू अनदर नोटेशन भी आना चाहिए आपको. कम ऑन. ठीक है, शौर्य इज एबल टू चेंज ए ड्यू इन्फिनिटी टू एस ड्यू इन्फिनिटी. रेस्ट ऑफ यू गाइज, लुक लेट मी चेंज. सो अभी तो मैं दिख रही हूँ ब्लू बॉक्स है, तो ये पूरा ब्लू बॉक्स रिमूव करेगा. सो अगेन मैं बैकवर्ड एरो की करूंगी, अगेन बैकवर्ड एरो की यूज करूंगी और उसके बाद एक और बार करूंगी, तो तब जाके देखो बैक स्पेस दबाया तो मेरा एस आया. क्लियर हुआ. एंड नाउ अगर मेरे को आगे आना है, इसको एस्केप करना है, तो आई कीप ऑन हिटिंग फॉरवर्ड एरो की अंटिल आई रिमूव दिस ब्लू बॉक्स. सो मेरा एस डी इन्फिनिटी भी हो गया. क्लियर हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग अ लेवल एनर्जी क्वेश्चन फर्स्ट. So let's try doing a 5.3 question. Calculate the present value of 1st June 2022 of payments of £1,000 payable on the first day of each month from July this to December this, assuming a rate of interest of 8% per annum convertible quarterly. So okay, let's try doing this. So either I can make this annuity in pth or I can do it as नॉर्मल एन्युटी बट कैलकुलेटेड एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट. ओके, सो मैं दोनों तरीके दिखाऊंगी, उसमें आपकी दोनों टाइप्स की एन्युटी कवर हो जाएंगे एंड देन वी वुड बी एबल टू कवर एट मोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ एन्युटीज. सो लेट्स स्टार्ट. सो टू गो टू द नेक्स्ट पेज, व्हाट आई टोल्ड यू गाइस, व्हाट वाज द शॉर्टकट टू गो टू द नेक्स्ट पेज? एवरीवन, व्हाट वाज द शॉर्टकट टू गो टू द नेक्स्ट पेज? Quickly tell me in the chat box. Yes, very good. Only one student knows in the classroom. क्या शॉर्टकट बताया हुआ था? Yes. So 5.3 question we are starting. So सबसे पहले तो मैं अपना नॉर्मल वाला कन्वर्जन कर लेती हूँ. If I am doing it in आई, मैं आई को कन्वर्ट करके अगर कर रही हूँ, सबसे पहले आई नीड टू चेंज माई आई. सो आई हैव टू राइट चेंजिंग इंटरेस्ट रेट कन्वर्टेबल क्वार्टरली टू एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. सो इफ आई एम यूजिंग इक्वेशन एडिटर, आई यूज ऑल्ट इक्वल टू गेट द इक्वेशन बार. देन आई हैव आई इज इक्वल टू, I have 1 plus I to the power 4 in brackets, then by 4 and raised to the power 4. अब मैंने बताया था जब मुझे ऊपर भी एक ब्रैकेट चाहिए then I have to use double brackets. अगर मुझे ऊपर ब्रैकेट नहीं चाहिए then I have to use single bracket, right? So 1 plus I to the power 4. So to the power के लिए मैं shift 6 दबाऊंगी to get this sign. Then I use this double brackets. Now you can see अगर मैं single brackets में करती, if I would have done it single brackets तो वो बिना ब्रैकेट्स के जाता, राइट? देन आई हैव 4 इन द डिनोमिनेटर ऑफ i4. अगर यहाँ पर मेरा 1 प्लस i4 के पूरे में डिनोमिनेटर होता तो मेरे को एक और बार ब्रैकेट यूज करना पड़ता, राइट? देन माई ब्रैकेट्स क्लोज्ड. देन आई हैव 4 इन द पावर, just minus 1. So this is simple calculation. I'm expecting this is clear from the previous classes only. And what I get is 2432%, whatever it is. Okay, now calculating the monthly effective rate. So how can I get the monthly effective rate? It is 1.082432.
This is raised to the power 1 by 12 and this is minus 1. This is equal to 0.6627227%. Okay. Now if I am working in months, तो मेरा present value का notation क्या होगा? 1000 A6 because I am making 6 payments for the next 6 months and कौन से interest rate पे कर रही हूँ मैं? 0.66227% पे, right? So चलो करते हैं. So this is 1000. A6 लिखना है मुझको. So A बार नहीं है, A ड्यू नहीं है, तो बैकस्लैश यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधे we will go to the subscript. Then we have n है, n की जगह 6 है इस बार, so we will write only 6. अब 6 के ऊपर बार डबल स्पेस अनदर स्पेस ताकि वो सबस्क्रिप्ट में चला जाए. Then I use my backward arrow key and I use my vertical bar and then a forward arrow key. इतना क्लियर हुआ everyone? Give me a yes if you are able to write this 1000 A6 with me. Okay, rest of you guys. ठीक है. What about you, Kshitij? Okay, Kshitij, Yan. ठीक है. Okay, everyone is able to do it. Now we have one more thing. जब हम interest rate use करते हैं तो हमको ऊपर at the rate interest rate भी लिखना होता है, right? So अब मुझे इसके पावर में जाना है, right? So मैं नीचे की पावर में जा रही हूँ ना. I want everything to the, मेरे को whole की पावर में थोड़ी चाहिए, मेरे को सिर्फ इस डिनोमिनेटर की पावर में चाहिए. So that's why जो हमारा blue bar है, blue box आ रहा है ना, मैं उसकी पावर में increase करूँगी. So what I need to increase is this at the rate sign and 0.66227% brackets close and this. आ गया ना आपकी साइड में? And अभी भी मैं blue bar में हूँ, that's why I need to use forward arrow key to escape this blue bar. And then I can simply calculate it. Now I am not showing the calculation. You can yourself do your calculation either in the normal approach or in the equation editor approach. Okay. अब अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा pth term use कर रही होती, if I would be using the pth term, so what I would be using? It would be 1000. I would be making 12,000 payments in a year. Okay. Let me tell you in this notation only. So a के ऊपर कुछ नहीं है. I just have 0.5 in the denominator this time. तो 0.5 backslash bar. अब देखो 0.5 backslash bar जब मैं लिखूंगी तो वो बार सिर्फ 5 के ऊपर लेगा, जबकि मुझे 0.5 के ऊपर चाहिए. So I would use my brackets, bracket bar. Okay. Then again a bar. फिर मैं backward arrow की use करूंगी and I would use this sign. Okay. अब मुझे ऊपर 12 भी चाहिए, right? So मैं escape करूंगी. I would use this sign. ये 12 यूज करूंगी. डबल ब्रैकेट्स यूज करना पड़ेगा, प्लीज मेक श्योर, वरना एक ही ब्रैकेट्स आएगा. सो आई वुड यूज दिस ब्रैकेट्स. फिर मैं नीचे जाऊंगी एक बार. आइदर आई कैन गो टू डिनोमिनेटर फॉर दिस ए बार, अदरवाइज मैं इसके पास ही लिख सकती हूँ. आई कैन कंटिन्यू राइटिंग हियर एज वेल एट द रेट 8.2432% इफ आई एम यूजिंग माई एनुअल इफेक्टिव रेट. एंड देन इसको फॉरवर्ड करने के लिए this thing. Bhavya, is it clear? If you are using this at the rate sign in the denominator, in the subscript, so जहाँ पर आपकी subscript end हुई है वहाँ पर के blue box में, blue color में आप जाओ and then you have to type your at the rate thing, everything in the brackets.
प्लीज मेक श्योर। ओके, अगर आप ऊपर लिख रहे हो सो जो आपकी ऊपर वाली स्क्रिप्ट खत्म हुई है उसके ब्लू वाले एरिया को एक्सेस करो, उसके ब्लू वाले एरिया में जाओ एंड देन यूज द @ साइन। Everyone able to write this term? This PH payment term, is everyone able to write? Give me a yes if everyone is able to write it. Okay, let me explain again. Look, I have this equation editor. So 12,000, then I have this whole term. So A 0.5 bar तो आप लिख लोगे ना क्षितिज? Is it clear? So try writing A 0.5 वाला बार वाला चीज. Try writing this. बस 0.5 का याद रखना, 0.5 को भी हम अलग अलग टर्म्स की तरह मान लेते हैं क्वेश्चनेटर में, दैट्स वाई 0.5 को ब्रैकेट्स में यूज करना, अदरवाइज जो बार आएगा दैट विल ओनली कम ओवर 5, जबकि हमें 0.5 के पूरे के ऊपर चाहिए, दैट्स वाई यूज ब्रैकेट्स. आर यू एबल टू राइट टिल हियर क्षितिज? Then I have to do this 12 ब्रैकेट्स में 12 चाहिए, और जब भी मुझे इक्वेशनेटर में ब्रैकेट्स शो करने होते तो आई यूज डबल ब्रैकेट्स, राइट? और मेरे को ये होल के ऊपर नहीं चाहिए ना, आई जस्ट वांट दिस थिंग, सो आई एस्केप दिस, आई यूज डबल ब्रैकेट्स. ओके, मुझे ये होल के ऊपर चाहिए बिकॉज मेरा होल के ऊपर ये वाली नोटेशन आएगी. अगर मैं 0.5 के ऊपर जस्ट लेती हूँ सो वो नीचे आएगा. क्लियर हो गया? सो आई नीड टू एस्केप दिस ब्लू बॉक्स. अब @ लिखने के लिए अगेन आई यूज माय @ थिंग, एंड मैं कोई भी इंटरेस्ट रेट मेंशन कर सकती हूँ. ब्लू को अगेन एस्केप करने के लिए यूज माय फॉरवर्ड एरो की. इक्वेशनेटर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस वेयरएवर दिस ब्लू बॉक्स कम. आपको कोड याद होना चाहिए सबसे पहले. फॉर एग्जांपल बार के लिए बैकस्लैश बार है, डबल डॉट के लिए बैकस्लैश dd डॉट है, dot है, सिंगल डॉट के लिए वी हैव बैकस्लैश dot ओनली. ठीक है, अगर नोटेशंस याद है देन इट्स ओके. और आपको ऑपरेट करना आता है, देन हाउ कैन आई एक्सेस दिस ब्लू बार, हाउ कैन आई एस्केप दिस ब्लू बार, कहां पर मुझे एंटर हिट करना है, देन यू आर वेरी वेल कंफर्टेबल विद द इक्वेशनेटर. मिथुन, इज इट क्लियर? क्षितिज, ओके, क्षितिज का भी हो गया है. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन. सो आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग ही नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करके आएंगे, बिकॉज इफ वी विल बी डूइंग आवर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वांटिटीज, सो उसमें कोई चेंज नहीं है. वी वुड बी जस्ट चेंजिंग आवर दिस टू IA. मैं सिर्फ इसको IA में चेंज कर दूंगी, नथिंग यूनिक. ठीक है, IA में बस एक ही जगह IA हो जाता है ना, सो आई वुड बी चेंजिंग माय लेटर ऑफ A टू IA, नथिंग स्पेशल. ओके, so in the next class I won't be teaching you how to write the notation for IA due, IA bar. Instead I would be directly starting a question. Is it clear? So I would expect you guys to practice it at home and try practicing कि आपने एक एक कोड सबके एक लिख लिए, and then you are changing term, you are changing p value, you are changing your letter from A to S in those notation after copying and pasting, rather than writing the new code all together. Okay, so that's your homework, guys. Is it clear, guys? Give me a yes in the chat room. Okay.